Good morning, dear students. In the last video, I have given you layout of modern periodic table, and I have told you how to draw this modern periodic table. I have told you certain things about it, like कि इसमें groups होते हैं, इसमें periods होते हैं. तो before I take up, the second lecture, I would like that to recap the first lecture once again, because it's very important in the periodic table that you must understand periodic table layout. Once you know the periodic table layout, then it will be very easier for you to understand various concepts that will be coming in the periodic table. I have told you that modern periodic table, or which is also called as long form of periodic table, is made up of 18 vertical columns. इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. Right? I've told you this last time, and I've told you that period are horizontal rows that goes from left to right. So there are 7 periods actually. In the first period, we have only hydrogen and helium. It is the shortest period of the periodic table. It is the shortest period of periodic table. Then second period have 8 element. It is having lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and neon. Then third period, fourth period, fifth period, sixth period is the longest period. This has got 32 elements. It has got 32 elements. Like I've told you, here we can see only 18 elements. But 14 elements are missing because lanthanum and hafnium. In between lanthanum and hafnium, there are 14 elements which are not able to get suitable place, or you can say not able to get proper place in the main body of periodic table. So they are kept below the main body of periodic table. ठीक है, तो इनको मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया है लेंथेनॉइड्स के नाम से. एक्टिनॉइड में भी वैसे तो 32 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनमें कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो अभी पूरी तरह से डिस्कवर नहीं हुए, लेकिन फिर भी इसकी कैपेसिटी जो है 32 एलिमेंट्स की है. तो हम कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट पीरियड जो है वो फर्स्ट वन है, और लॉन्गेस्ट पीरियड जो है वो सिक्स्थ है, क्योंकि इसमें 32 एलिमेंट्स हैं. ओके, तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रुप 1 को अल्कली मेटल कहते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के. हाइड्रोजन को नहीं काउंट करना. हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम से मैच नहीं करती. हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल नहीं है. ठीक है, और ग्रुप नंबर 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं. ऐसे ही इनके नाम होते हैं, तो दैट विल बी टेकिंग अप इन द नेक्स्ट slides. Then I have told you in the last video के group 1 and 2 are called as S block element. S block elements, what I've told you in the S block elements, what are S block element? S block elements are those elements in which last electron enter into S orbital. Group 13 to 18 comes under P block element because their last electron enter into P orbital, except helium. Helium is an exception because its atomic number is only 2, so its configuration is 1s2. So its last electron cannot go into P orbital, but in spite of that, it has been kept in the P block because helium is a noble gas, and it has been kept along with other noble gas, neon, argon, krypton, xenon, radon. तो हीलियम को बाकी नोबल गैसेस के साथ रखा गया है. ग्रुप 18 को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है.
Then I've told you about d block elements. Element in which last electron enter into d orbital, they are called as d block elements. ये आपका रिवीजन हो गया. एंड देन I've told you f block elements also. f block elements वो elements होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में एंटर करता है, f ऑर्बिटल में एंटर करता है. f ब्लॉक एलिमेंट में दो हॉरिजेंटल रोज हैं, एक है लेंथेनॉइड्स और एक क्या है, एक्टेनॉइड्स. लेंथेनाइड को फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं और एक्टेनाइड को सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं. लेंथेनाइड में जो एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है, हाफेनियम का 72 है. 57 के बाद एग्जैक्टली 58 नहीं आया, 72 आ गया, तो 14 एलिमेंट इसमें मिसिंग हैं. तो अगर 14 एलिमेंट्स मिसिंग हैं तो वो 14 एलिमेंट्स यहाँ चले गए एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक. तो इनको इनर ट्रांजिशन सीरीज़ कहा गया. तो फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज़ कहा गया क्योंकि ये ट्रांजिशन सीरीज़ के बीच में आती है. इसी तरह से एक्टीनियम का एटॉमिक नंबर 89 है, उसके बाद 90 आना चाहिए था, लेकिन रदरफोर्डियम आ गया 104 एटॉमिक नंबर के साथ. तो 14 एलिमेंट्स यहाँ पे भी मिसिंग हैं. तो 90 से लेके 103 तक एलिमेंट जो है वो एक्टेनॉइड सीरीज़ में एफ ब्लॉक एलिमेंट में आ गए और इसे सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज़ कहा गया. मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था ग्रुप नंबर 3 से लेके 11 तक जो हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल में 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं. और मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन भी बताई थी, आज फिर से वहाँ बताऊँगा आगे चल के अगली स्लाइड्स में. और ग्रुप जो 12 है ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है पर इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते. ठीक है, सो आई विल टेक अप दीज थिंग्स वन बाय वन नाउ. तो अब हम फीचर्स पे आ गए हैं पीरियोडिक टेबल के. तो पीरियोडिक टेबल के जो फीचर्स हैं हमारे, सबसे पहले है इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको ग्रुप्स या फैमिलीज कहा जाता है. इसमें 7 हॉरिजेंटल रोज हैं लेफ़्ट टू राइट जिनको पीरियड्स कहा जाता है. इसके अलावा 6 पीरियड में 14 एलिमेंट मिसिंग थे, उनको मेन बॉडी के नीचे रखा गया. ठीक है, और इनको लेंथेनाइड्स कहा गया. ऐसे ही 7th पीरियड में भी 14 एलिमेंट मिसिंग थे, उनको मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिली, उनको एक्टेनॉइड्स कहा गया. लेंथेनाइड को फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं और एक्टेनाइड को सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है. लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया है. इसके अलावा जो इसका 5th फीचर है ग्रुप 1 और 2, इनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर करता है, एस ऑर्बिटल में एंटर करता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं. कौन से ग्रुप्स को, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 को. गॉट इट बच्चा. इसका जो 6 फीचर है उसमें हमने बताना है कि ग्रुप 13 to 18 जो हैं इनको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं. हीलियम को रखा तो पी ब्लॉक में हुआ है, पर हीलियम के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन एस पी ब्लॉक में पी ऑर्बिटल में एंटर नहीं करता, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर ही 2 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है. बट उसके बावजूद भी इसको पी ब्लॉक ग्रुप में रखा हुआ है क्योंकि ये नोबल गैस है और इसको बाकी नोबल गैसेस के साथ रखना था. तो ये आप कह सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एक ड्रॉबैक हो सकती है. तो नोबल गैसेस कौन कौन सी होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रिटॉन. ठीक है, तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, वंस अगेन पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, पी ऑर्बिटल्स में एंटर करता है. ग्रुप नंबर 3 to 12 जो हैं उनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, लेकिन ग्रुप नंबर 3 to 11 को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है. तो जो ग्रुप 12 है उसको क्या कहते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं. ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी. और मैं आगे चल के अगली स्लाइड्स में ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन बहुत ही डिटेल में आपको बता दूंगा. ओके, गॉट इट.
तो एट्थ फीचर जो है इसका पीरियोडिक टेबल का, जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनको कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल या मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनको कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल या मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं। आप कह सकते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पीरियोडिक टेबल के बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। इनको मेन ग्रुप एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये एट्थ फीचर था पीरियोडिक टेबल का। उसके बाद जो नाइन्थ फीचर है, ग्रुप 1 के एलिमेंट हाइड्रोजन को छोड़ के लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इनको अल्कली मेटल कहते हैं। तो आपको बहुत ही बार पता होता है कि अल्कली मेटल आप कहते रहते हैं कि ग्रुप 1 के एलिमेंट अल्कली मेटल हैं। तो अल्कली मेटल का मतलब क्या है? एक्चुअली ये वाटर में हाईली सॉलेबल होते हैं और अल्कलीज बना देते हैं। तो जैसे कि सोडियम है, वाटर में रिएक्ट करके, वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड हाईली सॉलेबल बेस बना देते हैं। तो जो हाईली सॉलेबल बेसिस होते हैं उनको अल्कलीज कहा जाता है। ऐसे ही पोटाशियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है एंड इट्स हाईली सॉलेबल इन वाटर। तो इसको हम क्या कह देते हैं? अल्कली कह देते हैं। अल्कली मेटल में आपने हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं करना। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ड्रॉबैक है कि हाइड्रोजन को हम प्रॉपरली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नहीं रख पाए कि कहाँ पे रखना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम के साथ मैच कर सकती हैं या करती हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी हैलोजेंस के साथ भी मैच करती हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ। तो हम फॉर द टाइम बिंग हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रख लेते हैं, बट हाइड्रोजन शुड नॉट बी कॉल्ड एज ए अल्कली मेटल। सो हाइड्रोजन इज ए रॉग एलिमेंट, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डेबेटेबल है, मतलब इसके ऊपर डिबेट किया जा सकता है और हम इसके ऊपर बहुत सारा डिबेट कर सकते हैं कि इसको कहाँ पे रखना चाहिए। इसको हमें फर्स्ट ग्रुप में रखना चाहिए क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम से मैच करती हैं, या 17 ग्रुप से रखना चाहिए क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं हैलोजेंस के साथ भी मैच करती हैं। तो इसलिए हाइड्रोजन को रॉग एलिमेंट कहा जाता है, और ये एक ड्रॉबैक है कि वेयर टू कीप हाइड्रोजन। तो जब पीरियोडिक टेबल एंड हो जाएगा, जब हम उसकी ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे, उसमें ये एक ड्रॉबैक आएगी कि हाइड्रोजन की प्रॉपर पोजीशन हम नहीं आज तक दे पाए कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखना चाहिए अल्कली मेटल्स के साथ या हैलोजेंस के साथ रखना चाहिए। हैलोजेंस का ग्रुप जो है वो 17 होता है। तो ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं, ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। तो ये भी अल्कलीज बनाते हैं, ये अर्थ की क्रस्ट में फाइंड आउट किए जाते हैं और इसलिए इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहा गया है। तो अल्कली मेटल्स को, यानी कि पॉइंट नंबर 9 की बात कर रहा हूँ फिर से, को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिल जाता है। तो ये अल्कली मेटल जो हैं सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम हो सकते हैं। तो लेकिन जब अल्कलाइन अर्थ मेटल को वाटर के साथ या वाटर में पुट करते हैं तो ये भी उनके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं और साथ में हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं, एमओ,
मेटल ऑक्साइड्स जो हैं ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब यहाँ पे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर रहे हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब कैल्शियम हो गया, स्ट्रॉन्शियम हो गया, बेरियम हो गया, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इसलिए इनके बारे में बात की गई है। बेरिलियम और मैग्नीशियम थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं, तो इसलिए उनको यहाँ पे शो नहीं करा गया। ठीक है, गॉट इट। तो ये 10 फीचर्स आपको पता चल गए पीरियोडिक टेबल के, मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल के और लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के। तो 11th फीचर में मैं आपको ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। तो बच्चा, ट्रांजिशन एलिमेंट जो है उसको डिफाइन करते हैं एक ऐसा एटम जिसकी ग्राउंड स्टेट में यानी कि नॉर्मल स्टेट में या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ऑर्बिटल में 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 to 9, 1-9 नहीं, 1 to 9, 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ऑर्बिटल में। जिन एटम्स के, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि कॉपर हो गया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 18 आर्गन 4s1 3d10, ये ग्राउंड स्टेट है इसकी। यानी कि ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है जो नॉर्मल इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ जाते हैं, यानी कि जब इसमें से इलेक्ट्रॉन को ये कॉमन कटाइनिक फॉर्म में चला जाता है। तो कॉपर की कॉमन कटाइनिक फॉर्म जो है 2+ होती है। तो मैंने पिछले से पिछले वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो लास्ट वीडियो था उसमें आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करने होते हैं तो कहाँ से करते हैं। बताइए, कॉपर की ये कॉन्फ़िगरेशन है, 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर में से रिमूव करने हैं, तो पहले कहाँ से रिमूव करते हैं? 4s में से। 4s में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, बाद में 3d में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो कॉपर 2+ हो गया। तो पहले 4s में से क्यों रिमूव किया? मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लास्ट वीडियो में बताया था। ये बताया था, देखो कैसी कॉन्टिन्यूटी बन रही है ना, कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद पीरियोडिक टेबल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सारी आगे चलती जा रही है। तो मैंने जो सबसे लास्ट वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का दिया था आपको, उसमें मैंने कटाइनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करा था। तो मैंने कहा था कि पहले 4s में से इलेक्ट्रॉन इसलिए निकाला क्योंकि 4 जो है हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और जो 3 है वो स्मॉलर वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर है। ये n की वैल्यू 4 है, ये n की वैल्यू 3 है। तो n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हायर है, पहले उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। तो हमने 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और एक इलेक्ट्रॉन 3d10 में से निकाल लिया, तो 3d9 हो गया। तो अब मुझे बताइए कि 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 9। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जब d ऑर्बिटल में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसलिए बच्चा, जो कॉपर है वो क्या हो गया? ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ग्रुप नंबर 12 की। तो मैंने कहा था कि जो ग्रुप नंबर 12 होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, क्योंकि उनकी ग्राउंड स्टेट में और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ऑर्बिटल में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन नहीं होते बल्कि फुली फिल्ड होता है। तो पहले जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। 18 आर्गन 4s2 3d10, ये ग्राउंड स्टेट यानी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जिंक की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है Zn2+ होती है। तो हमें पहले s में से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, निकाल लिए। अब 3d10 हो गया, तो इसका मतलब इसमें 1 to 9 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3d10 है। तो जिंक के नीचे पीरियोडिक टेबल में कैडमियम होता है, कैडमियम के नीचे मरकरी होता है। तो उनकी भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 1+ या 2+ होती है। तो उनमें भी जब 1 या 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जो डी ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड ही रहेगा। तो अगर डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड ही रहेगा तो उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाएगा। तो देयरफॉर zinc is not a transition element. Similarly, other elements of group 12, zinc, cadmium, mercury are or cannot be called as transition element. इसलिए ग्रुप नंबर 3 to 11 जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं या ट्रांजिशन मेटल हैं, और ग्रुप 12 के जो एलिमेंट हैं उनको
यस, ग्रुप नंबर 12 के जो एलिमेंट हैं उनको हम क्या कहते हैं? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। आई होप इज क्लियर टू यू। क्लियर? ओके, कम टू 12th फीचर ऑफ पीरियोडिक टेबल। 12th फीचर में हमने बताना है कि ग्रुप 11 जो है जिसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड हैं, उनको क्वाइनेज एलिमेंट के नाम से पॉपुलरली जाना जाता है। क्योंकि कॉपर क्या है? तांबा। एजी सिल्वर, सिल्वर चांदी। एयू गोल्ड सोना। तांबा, चांदी, सोना। तो इनके सिक्के बनते थे ना जब राजे महाराजे थे। सुना है ऐसा, मैंने देखा नहीं मैंने 2000 साल पहले या 4000 साल पहले सोने की अशर्फियाँ, सोने के सिक्के होते थे। फिर हम थोड़े गरीब हुए तो चांदी के सिक्के आ गए। फिर उसके बाद हम थोड़े और गरीब हुए तो तांबे के सिक्के आ गए। फिर कागज़ के नोट ही आ गए, है ना। फिर अब प्लास्टिक की करेंसी आ गई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, लाइक दैट। तो एनीवेज, ग्रुप नंबर 11 के जो एलिमेंट हैं उनको कॉइनेज एलिमेंट कहा जाता है क्योंकि इसमें तांबा, चांदी, सोना है। ग्रुप नंबर 13 को बोरोन फैमिली कहते हैं। इसमें बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम है। मैं इनकी प्रोनाउंसिएशन आपको सिखा रहा हूँ। ग्रुप नंबर 14 को कार्बन फैमिली कहते हैं। इसके अंदर एलिमेंट सीक्वेंशियल ऑर्डर में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड है। ग्रुप नंबर 15 को पेनेकोजेंस कहते हैं। पेनेकोजेंस का मतलब सफोकेशन कॉजिंग गैसेस होती हैं क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसी गैसेस बना सकते हैं जो कि सफोकेशन कॉज करती हैं। तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं सिक्वेंशियल ऑर्डर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ है। ठीक है। फास्फोरस जैसे है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके फॉस्फिन गैस बनाती है जो कि सफोकेशन कॉज करती है। आर्सेनिक जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके AsH3 नाम की आर्सिन गैस बनाती है, ये भी सफोकेशन कॉज करती है। तो ये सफोकेशन कॉज करने वाली गैसेस हैं, इसलिए इनको इस ग्रुप को, ग्रुप नंबर 15 को पेनेकोजेंस के नाम से जाना जाता है। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। ग्रुप नंबर 16 को चैल्कोजेंस कहा जाता है क्योंकि चैल्कोजेंस का मतलब होता है ओर्स फॉर्मिंग सब्सटेंसेस। तो अर्थ के अंदर ज़्यादातर जो ओर्स होती हैं ऑक्साइड या सल्फाइड की होती हैं। जैसे अर्थ के अंदर से मरकरी निकलेगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरस ऑक्साइड, जिंक निकलेगा, जिंक सल्फाइड, देन कैल्शियम निकलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप देखेंगे उनमें ज़्यादातर जो है ऑक्सीजन या सल्फ़र प्रेजेंट ही होता है। तो इसलिए ये जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स, इनको चाल्कोजेंस कहा जाता है। ये इसके अंदर सिक्वेंशियल ऑर्डर में ये ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम होते हैं। ग्रुप नंबर 17 को हैलोजेंस कहते हैं। ये सॉल्ट फॉर्मिंग सब्सटेंसेस हैं। सीक्वेंशियल ऑर्डर में इनके नाम हैं फुलरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टॉटिन, राइट। और ग्रुप नंबर 18 को एरोजेंस या नोबल गैसेस या ज़ीरो ग्रुप या इनर्ट गैसेस कहते हैं। आई रिपीट अगेन, ग्रुप नंबर 18 पीरियोडिक टेबल का लास्ट ग्रुप है। इनको एरोजेंस या नोबल गैसेस या ज़ीरो ग्रुप या इनर्ट गैसेस कहा जाता है। इसकी एग्जाम्पल्स हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। रिपीट अगेन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। आई होप इज क्लियर टू यू। आगे चलने से पहले आपको ये सारा अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। गॉट इट। इनके नाम याद करने का तरीका फिर से बताऊं आपको। जो फर्स्ट ग्रुप है उसे कैसे याद करना है? हाय लीना ने की रब से फरियाद। ग्रुप 2 बेबे मरगी क्या सर भारा, स्कॉटलैंड। ग्रुप 3 स्कॉटलैंड यार्ड इन लॉस एंजलस।
ग्रुप नंबर 4 टीना, जरा, हाफी, राफी। ग्रुप नंबर 5 वे, नवाब, तारागढ़। ये याद करने की ज़रूरत नहीं, लास्ट एलिमेंट। ग्रुप नंबर 6 क्रो, मो, CRMOW। ग्रुप नंबर 7 मंजीतो, टकरी। ग्रुप नंबर 8 फीरोज। ग्रुप नंबर 9 कोरा इन आयरलैंड। ग्रुप नंबर 10 नेशनल पावर प्लांट। लास्ट याद करने की ज़रूरत नहीं। ग्रुप नंबर 11 तांबा, चांदी, सोना। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ग्रुप नंबर 12 ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आता ना, बाहर निकल गया है, तो ये नॉन ट्रांजिशन है। जिन्ना नू कड मारिया, बाहर निकाल दिया। ग्रुप नंबर 13 बल, जेंटल। ग्रुप नंबर 14 कॉलेज स्टूडेंट गॉट सम प्रॉब्लम। ग्रुप नंबर 15 एन फा बी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ग्रुप नंबर 16 ऑसीटीपो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ग्रुप नंबर 17 हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टॉटिन। ठीक है। ग्रुप नंबर 18 हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। हिनी, हीलियम, नियॉन। आर्कर, आर्गन, क्रिप्टॉन। जीरॉन, जिनॉन, रेडॉन। ओके। ग्रुप नंबर 1 को क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स। ग्रुप नंबर 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप नंबर 3 से लेके 11 तक ट्रांजिशन एलिमेंट। ग्रुप नंबर 3 से 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 11 को कॉइनेज मेटल। ग्रुप नंबर 12 को नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ग्रुप नंबर 13 को बोरोन फैमिली। ग्रुप नंबर 14 को कार्बन फैमिली। ग्रुप नंबर 15 को पिनेकोजेंस या नाइट्रोजन फैमिली, सफोकेशन कॉज करने वाली गैसेस। ग्रुप नंबर 16 को चैल्कोजेंस या ऑक्सीजन फैमिली। चैल्कोजेंस का मतलब ओर फॉर्मिंग सब्सटेंसेस। ग्रुप नंबर 17 को हैलोजेंस, सॉल्ट फॉर्मिंग सब्सटेंसेस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टॉटिन। ये नीचे जो यू लिखा हुआ है ये अभी आपका कल का या परसों के लेक्चर में आ जाएगा। ग्रुप नंबर 18 को क्या क्या कहते हैं? ग्रुप नंबर 18 को हम इनर्ट गैसेस भी कह देते हैं, नोबल गैसेस भी कह देते हैं, ज़ीरो ग्रुप भी कह देते हैं, और क्या कह देते हैं? और कह देते हैं इनर्ट गैसेस, हाँ एरोजेंस भी कह देते हैं। इन एरोजेंस कह देते हैं, नोबल गैसेस कह देते हैं, ज़ीरो ग्रुप कह देते हैं, इनर्ट गैसेस कह देते हैं। नीचे आ जाइए वंस अगेन। नीचे दो कॉलम्स हैं, ये हॉरिजेंटल कॉलम्स हैं। पहले हॉरिजेंटल कॉलम का नाम लेंथेनॉइड्स है। इसमें 4f ऑर्बिटल फिल होता है। ये पीरियोडिक टेबल के 6 पीरियड में होना चाहिए था, वहाँ जगह नहीं मिली तो नीचे हैं लेंथेनॉइड्स। और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 58 से लेके 71 तक होते हैं। अभी उनके नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक और हॉरिजेंटल रो आपको नज़र आ रही है लेंथेनाइड के नीचे, इनको एक्टिनॉइड्स कहते हैं। ये 5f सीरीज़ है। इसमें 5f ऑर्बिटल जो है वो फिल हो रहा होता है। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 90 से लेके 103 एटॉमिक नंबर तक होते हैं। इनको एक्टिनॉइड्स कहते हैं, सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज़ भी कहते हैं। वैसे ये पीरियोडिक टेबल के 7th पीरियड को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक अच्छे से पहले समझिए।